Namaskar. I, Karuna Sharma, faculty member, Chandigarh Judicial Academy, welcome all the esteemed officers from the state of Punjab, Chandigarh, and Haryana. Today, we have with us Sir Shri H.S. Bhangu, who will be speaking on the topic, which is law of sentencing. Sir has retired as District and Sessions Judge from Haryana in the year 2011. Since then, Sir has been teaching at Chandigarh Judicial Academy as faculty member. I welcome you, Sir. Hello, good morning, Karuna. Good morning, sir. Sir, the format for this webinar will be again in the form of question and answers. We have culled out certain questions from this topic, the law of sentencing. So, sir, I'll be asking some questions which I have framed, and I would like sir to answer those questions. Good. So, can we start? Ji, sir. So, sir, first question is, so you want me to put these questions on screen? Yes, I think. Suggest. That would be convenient. Ji. So I think the questions are now on the screen. Okay. So, sir, my first question to you is regarding Section 31 CRPC. Sir, can you please elaborate about the concurrent and the consecutive sentences? We hardly see any judgment where the court has ordered consecutive running of sentences. Yes, that's right. In my long experience, I have hardly seen any judgment where the officer concerned had passed a sentence running consecutively. So you are very right that we don't often see those judgments, but we should be aware of what that the power of passing sentences running concurrently and consecutively is available with the courts, and this provision is contained in Section 31 CRPC. Section 31 CRPC tells us that when a court is conducting a trial with multiple offences, say, for example, we can take a case of, say, two offences, 325 and 376. The trial is being conducted for offence under Section 325 and 376. So Section 31 tells us that the court has power to grant the punishment which is prescribed by the penal provisions 325 and 376. So 376 contains punishment जो है उसमें कौन सी कितनी है, लाइफ है और minimum 10 years है. So the court can award that, and दूसरा offense 325 का है तो उसमें 7 years तक है तो 7 years तक कर सकती है कोर्ट. So that is the general provision कि वो कोर्ट जो है वो पावर है उसके पास कि वो जो सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड है पूरा उसको कर सकती है, और चाहे वो लाइफ है चाहे डेथ है, whatever is the prescribed. And those sentences they will run one after the other. तो पहले एक सेंटेंस जो है उसका जब पीरियड खत्म हो जाएगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा खत्म हो जाएगा, तीसरा स्टार्ट हो जाएगा. एंड द कोर्ट हैज द पावर टू गिव अ डायरेक्शन कि कौन से किस सीक्वेंस में ये रन करेंगे. वो भी सेक्शन 31 बताता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये 376 वाला पहले चलना चाहिए और फिर दूसरा चलनी है बाद में, तो यू कैन डू दैट. ओके. और अगर आप उसको चाहते हैं कि ये कंकरेंटली रन करें, कंकरेंटली मीन्स दी सेंटेंसेस विल रन टुगेदर, इकट्ठे चलेंगे, कंसेक्टिवली वन आफ्टर दी अदर चलेंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि कंकरेंटली चलें तो देन यू हैव टू पास एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली कि ये सेंटेंसेस जो मैं पास कर रहा हूँ दे विल रन कंकरेंटली. अगर आपकी जजमेंट साइलेंट है, इट डजंट से कि कंकरेंट है या कंसेक्टिव है, तो देन सेक्शन 31 टेल्स अस कि वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि कंसेक्टिव है, कंसेक्टिव सेंटेंसेस की है.
the sentences will run consecutively. अब इसमें ये जो मेन क्या फ़र्क क्या है कंकरेंट और कंसेक्टिव में? जो हम कहते हैं कंसेक्टिव नॉर्मली कंकरेंट ही देखो, जिसको देखो कंकरेंटली कर रहा है. इट इज़ बीइंग डन, आई थिंक इट्स बीइंग डन मैकेनिकली. हम वी हार्डली अप्लाई अवर माइंड पे हमें कंसेक्टिव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो अब इसी केस में जैसे 325 और 376 वाला है, इसमें अगर कोर्ट ने उसको 5 साल की सजा दे दी 325 में और मिनिमम सेंटेंस है 10 साल 376 में, तो मिनिमम 10 साल उसमें दे दी 376 में और उसको कर दिया कॉन्करेंट, तो इसका मतलब वो 10 साल के बाद जेल से बाहर आ जाएगा. सो इन अ वे आपने उसको एक ही पनिशमेंट दी है, वो 376 की जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड, वो तो उसको देनी थी. अगर उसके खिलाफ एक ही चार्ज होता 376 का, तब भी उसने 10 साल रहना था जेल में, वो तो मिनिमम थी उसमें. अब आपने उसको 325 की तो पनिशमेंट दी ही नहीं एक इन अ वे. तो ये कई केसेस ऐसे हैं जिसमें वी शुड कीप दैट इन माइंड कि ये प्रोविजन बनाया है तो इसको वी शुड यूज इट ऑल्सो जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट है. तो आगे आगे ये क्वेश्चन ये आता है अभी इसमें, हाँ, जैसे अभी एक ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बहुत बारी आती हैं और अभी रिसेंटली भी आई है एक जजमेंट जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट मस्ट मेंशन इन द जजमेंट कि ये सेंटेंसेस कंकरेंटली रन करेंगे या कंसेक्टिवली रन करेंगे. ये लिखना बहुत ज़रूरी है. सुप्रीम कोर्ट हैज रीटरेटेड दिस इन रीसेंट जजमेंट थी मेरे ख्याल वो सुनील कुमार वाली 2021 की है. सुनील कुमार का केस है 2021 में आई है जजमेंट. सो वी कैनॉट मिस दैट. ये नहीं कि उसमें लिखा हुआ है प्रिजम्पशन हो जाएगी फिर कंसेक्टिवली रन करेंगे, और दे से यू हैव टू राइट इट कंसेक्टिवली रन करें या कॉन्करेंटली रन करें. और उसमें उसी जजमेंट में उन्होंने ये भी बताया है कि ये डिस्क्रिशन है एब्सोल्युटली विद द कंसर्न ऑफिसर कि उसको कंकरेंट करना चाहता है कंसेक्टिव करना चाहता है, बट दैट डिस्क्रिशन हैज टू बी एक्सरसाइज जुडिशियली. अब उसको कौन से केस में कंकरेंट करेगा, कौन से में कंसेक्टिव करेगा वो, तो ये तो नहीं, उस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, उसके केस के फैक्ट्स क्या हैं, उसको ओवरऑल आप पनिशमेंट क्या कितनी देना चाहते हो. ठीक है, तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर टेकन इनटू कंसीडरेशन. तो ये मेन डिफरेंसेस हैं कंकरेंट और कंसेक्टिव के, और ये लॉ है सेक्शन 31 CRPC में ये है इसको. ओके, वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. Sir, are there any limitations on the exercise of this power given under section 31? हाँ, ये उसी में 31 में लिखा हुआ है कि 2 लिमिटेशन लिखी हुई है उसमें, सब्जेक्ट टू कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 IPC. 2 लिमिटेशन लिखी हुई है उसमें. अब दोनों का क्या क्या मतलब है इसका? पहली तो सब्जेक्ट टू कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट है. कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट इस सेंस में है कि ये तो सेक्शन 31 ने तो कह दिया भी आप जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है हर ऑफेंस के लिए वो कोर्ट दे सकता है. अब अगर 3 केस हैं, 3 ऑफेंसेस हैं, तो तीनों में वो कर सकता है. अब जैसे यही एग्जांपल था हमारे पास 325 और 392 का ले लो जैसे एग्जांपल है. तो 325 में 7 साल है, 392 में 10 साल है नॉर्मली. तो आप उसमें 10 साल और 7 साल की सजा 31 कहता है कर सकते हो, और इसको कंसेक्टिव भी कर सकते हो, रनिंग वन आफ्टर द अदर. यानी कि टोटल कितना 17 साल के लिए अंदर रहेगा वो इस हिसाब से, अगर वो कंसेक्टिव सेंटेंस होता है. अब इसमें क्वेश्चन यही आता है कि ये मैजिस्ट्रेट जो है वो सेक्शन 29 उसकी पावर को लिमिट करता है. वो कहता है कि एक ऑफेंस के लिए आप 3 साल से ऊपर कर नहीं सकते. और ये सेक्शन 31 तो जनरल प्रोविजन है, वो कहता है ठीक है जितनी है तो मैक्सिमम की जा सकती है, बट इट हैज टू बी रेड. इसीलिए उसमें सब्जेक्ट टू दी कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, इसीलिए लिखा उसमें कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट. तो इसलिए मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट 325 के केस में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल करेगा. और 392 का दूसरा ऑफेंस है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कर देगा. ठीक है, तो
आवाज आ रही है? जी सर, आई थिंक देयर वाज सम टेक्निकल स्नैग। यस यस। जी, सो वी वर टॉकिंग ऑफ, क्या था क्वेश्चन आपका? लिमिटेशन सर, लिमिटेशंस व्हिच आर लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन की बात कर रहे थे हम कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। तो 325 392 का जैसे एग्जांपल लिया हमने कि उसमें वो हालांकि 7 साल 31 कहता है भाई 7 साल उसमें कर सकता है, 10 साल उसमें कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू कॉम्पिटेंसी आ गई तो मजिस्ट्रेट 3 साल से ज्यादा नहीं कर सकता और 1 ऑफेंस। इसलिए 325 में भी 3 साल से ज्यादा नहीं कर पाएगा और उसमें भी 3 साल से ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो पर ये फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या 3 और 3 तो अगर कंसेक्टिव कर दिया उसने तो वो 6 साल हो गए, then the person has to remain in jail for 6 years। तो क्या उसके ऊपर कोई अपर लिमिट है जहां तक वो कर सकता है मजिस्ट्रेट? द आंसर इज यस। तो सेक्शन 31 का अगर हम प्रोवाइजो देखते हैं, प्रोवाइजो बी जो है 31 का, तो वो बताता है हमें कि जो कोर्ट कंसर्न है उसकी जो पावर है फॉर 1 ऑफेंस उससे जो डबल है उसको एक्सीड नहीं कर सकता वो। इसलिए अगर मैजिस्ट्रेट की पावर 3 साल की है एक ऑफेंस के लिए तो इसका मतलब एग्रीगेट में वो 6 साल से ऊपर सजा नहीं कर सकता। तो अगर उसने इसमें 3 और 3 कर दी 6 तो ठीक है, विद इन इट्स ओके। नाउ सपोजिंग वी हैड 3 ऑफेंसेस, तो अगर वो 3 3 और 3 करता तो 9 हो जाते कंसेक्टिवली, तो दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। हाँ, उसको डिवाइड करके अगर वो 1 साल 2 साल और 3 साल करते वो ठीक है। सो एग्रीगेट में आप उसको उसके डबल से एक्सीड नहीं कर सकते उसकी पावर्स। तो ये तो है मैजिस्ट्रेट की। ऐसे ही सीजीएम का आ जाता है। तो सीजीएम की पावर है 7 साल की। तो फॉर 1 ऑफेंस ही कैन पास अ सेंटेंस ऑफ 7 years। तो एग्रीगेट में वो अगर उसके पास 3 ऑफेंस है, 4 ऑफेंस का ट्रायल है, तो वो एग्रीगेट में उसकी डबल 14 साल एक्सीड नहीं कर सकता। ये 31 की क्लॉज भी प्रोवाइजो बता रही है हमें। और उसका प्रोवाइजो ए भी ये कह रहा है, प्रोवाइजो ए भी ये कहता है कि इन नो केस द टोटल एग्रीगेट शुड एक्सीड 14 years, ये भी कह रहा है। तो सीजीएम जो है वो 14 साल से ऊपर नहीं कर पाएगा एग्रीगेट में, मजिस्ट्रेट जो है वो 6 साल से ऊपर नहीं कर पाएगा। बट एज फार एज द courts of sessions are concerned, additional session judges and session judges are concerned, उनका क्या होगा? अगर मान लीजिए वही केस हो जाता आपका, जैसे 376 का केस है और 300 या 325 326 307 का केस ले लो। अगर उसमें वो मान लीजिए 3 साल 5 साल 7 साल कर देता है तो टोटल 15 साल हो गया। तो कैन ही पास दैट सेंटेंस? 15 years का क्या कर सकता है या नहीं कर सकता? ये अगर इसको हम सेक्शन 31 को पढ़ते हैं तो उसमें प्रोवाइजो ए कहता है इन नो केस दी एग्रीगेट शुड एक्सीड 14 years। यही है ना सर, 31 प्रोवाइजो ए में यही कहता है जी। तो ये इस अगर ऐसे उसने सेंटेंस कर दिया और ये 15 साल हो गए तो ये उसकी कॉन्ट्रोवेंशन तो हो गई। बट नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड कि ये लिमिटेशन सेशन कोर्ट के ऊपर नहीं है। ये उन्होंने आपके ये 2016 का केस आया था मुथु रामालिंगम 2016 का केस है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्लैरिफाई किया था कि 31 प्रोवाइजो ए जो है इट डजंट गवर्न द कोर्ट्स ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन पे लागू, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन की तो अनलिमिटेड पावर है, उसके पास लाइफ सेंटेंस की भी है, डेथ पेनल्टी भी है, और उसका एग्रीगेट के ऊपर 14 साल की लिमिटेशन नहीं लगाई जा सकती। ये हालांकि ये पहले बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं बहुत सारी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने यही कहा भी ये 14 साल से ऊपर नहीं जा सकते। बट नाउ दिस हैज बीन सेटल्ड थ्रू इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मुथु रामालिंगम। सो कोर्ट ऑफ सेशन पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कर सकते हैं। तो दे कैन
पास एनी सेंटेंस, उनके पास पूरी पावर 31 की कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट वाली जहाँ बात आती है तो उनकी कॉम्पिटेंसी तो है फुल, दे कैन पास एनी सेंटेंस जो अप्रोप्रिएट है। ऑफ कोर्स इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू दी ऑफेंस इन क्वेश्चन, बाकी उनकी पावर पे लिमिटेशन नहीं। तो ये वी हैव आंसर्ड वन लिमिटेशन। ओके जी, दो लिमिटेशन थी ना, एक लिमिटेशन की बात हमने कर दी कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट की लिमिटेशन बताता है सेक्शन 7। दूसरी लिमिटेशन ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे उसको। अभी तो मेरे ख्याल इसके साथ यही ठीक है, क्योंकि हम सेक्शन 31 की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये मेनली यही बात डिस्कस करने वाली। Right, sir. So, sir, next question stands already answered. It is covered within the first limitation, as you have said, that magistrate cannot pass the aggregate exceeding 6 years is the maximum limit for a magistrate, and 14 years is the maximum limit for CJM, and there's as such no limit for a session court. The next question number 4 is, what happens if accused is tried and convicted for 2 murders in a single trial and court passes 2 sentences of life imprisonment? So can the court direct the 2 sentences to run consecutively? और इसका B part भी है क्या? Yes, sir. B part is life imprisonment, generally means imprisonment for 14 years or imprisonment. So there's always a confusion in this, whether it is 14 years or for 20 years or for the entire biological life of the accused. हाँ, ये अभी तक भी ये confusion चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है, क्योंकि ये I think we should answer this part first कि इसका मतलब क्या है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। ये तो 1961 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आया था जी। ये गोपाल गोडसे वाला केस था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था 1961 में, उसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस द एंटायर बायोलॉजिकल लाइफ, इट डजंट मीन 14 ईयर्स, इट डजंट मीन 20 ईयर्स। अब ये 20 साल और 14 साल वाली कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट होती है? 20 साल वाली कंफ्यूजन क्रिएट होती है सेक्शन 57 से। सेक्शन 57 में लिखा हुआ उन्होंने 20 साल प्रिज्यूम की जाएगी, उसका मतलब इंटायरली डिफरेंट है। वो कहता है कहीं पर अगर आपको फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप उसको प्रिज्यूम कर लीजिए। वैसे तो पता नहीं कि आदमी कितनी देर जिएगा, वो टिल इंटायर लाइफ अगर आपने सेंटेंस उसको कर रखा है तो हो सकता है 10 साल में मर जाए, हो सकता है 20 साल में मरे, 30 साल में मरे, 40 में मरे। तो वी डोंट हैव ए स्पेसिफिक फिगर, इसलिए कई बार कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, तो उसमें तब हम प्रिजम्पशन लेते हैं कि वो 20 साल सिर्फ उस पर्पस के लिए है 57। इट इज अदरवाइज ये इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ का 20 ईयर्स की सेंटेंस होता है। और ये 14 साल वाली जो है ये कंफ्यूजन, एक तो ये 31 वाला जो प्रोवाइजो में लिखा हुआ था 14 साल से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, इससे कंफ्यूजन है। एक आपका वो सेक्शन 433 ए है CRPC का, उसमें क्या था कि वो आप कोर्ट्स जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर कर देती हैं और गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि उसको सेंटेंस को कम्यूट कर सकती हैं, रेमिशन कर सकती हैं। तो उसमें जनरली फॉर पॉलिटिकल रीजंस उनको जो प्रिजनर्स हैं दे वर बीइंग लेट ऑफ आफ्टर कंप्लीटिंग ए टेन्योर ऑफ से 7 years और 10 years in jail। ये रूटीन हो गया था उसमें। Then the parliament came with this amendment 433A, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे रखी है और एनी ऑफेंस जिसमें डेथ सेंटेंस भी प्रोवाइडेड है, तो उस केस में जो प्रिजनर है उसको 14 साल जेल में रहना ही है, उससे कम नहीं आप उसको रेमिशन नहीं कर सकते, ना कम्यूट कर सकते। तो ये उस सेंस में उन्होंने 14 साल कहा था, ये नहीं कहा कि बायोलॉजिक के लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स 14 years। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स इंटायर बायोलॉजिकल लाइफ, इट डजंट मीन 14 years और 20 years। अब ये पहला पार्ट जो आपके क्वेश्चन का वो ये है कि एक ट्रायल में 2 मर्डर्स हैं। कई बार ये भी मैंने कई बार ये भी क्वेश्चन पुट कर लेते हैं लोग, भाई हाँ
क्या एक ट्रायल में दो मर्डर्स का एक इकट्ठा ट्रायल चल सकता है? तो क्यों नहीं चल सकता? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। अगर अगर एक ही ट्रांजैक्शन में 2 मर्डर हुए तो बिल्कुल चल सकता है, और दोनों के चार्जेस लगेंगे और दोनों में कन्विक्शन हो, सेंटेंस भी पास किया जा सकता है। तो द कोर्ट कैन पास 2 sentences ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि ए के मर्डर के लिए भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बी के मर्डर के लिए भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाएगी। अब ये क्या वो कंसेक्टिवली रन कर सकते हैं? तो ये अगेन देयर वाज ए कंफ्यूजन इन दिस रिस्पेक्ट। तो कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में उन्होंने किया हुआ है कंसेक्टिवली, बट नाउ दिस कंट्रोवर्सी हैज बीन सेटल्ड। वही केस है मुथु रामालिंगम में ही, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था उसमें ही उन्होंने ये इसको सेटल किया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि वो एक ही लाइफ होती है आदमी की, तो इंटायर बायोलॉजिकल लाइफ के लिए उसको अंदर रहना है, तो दूसरा कब स्टार्ट होगा फिर? तो इट कैन नॉट बी कंसेक्टिव। वी कांट पास के ऑर्डर के ये कंसेक्टिवली रन करेंगे, सो दे हैव टू रन कंकरेंटली। जहाँ 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो एक ही होती है, एक ही लाइफ है उसकी, तो वो कब कब खत्म होगी? तो वहां पर कॉन्करेंटली ही ऑर्डर करना पड़ता है। हाँ, अगर ये मान लीजिए उसको जैसे फिर गवर्नमेंट कहीं बारी वो जैसे कम्यूट कर देती हैं या फिर रिमिशन हो जाती है, फिर क्या होगा? देन व्हाट हैपेंस इन दैट सिचुएशन? अगर आपने कर दिया और गवर्नमेंट उसको 14 वो 433A वाला प्रोविजन आ गया, 14 साल वाला, तो उसमें इसलिए ये है कि ये जो 2 सेंटेंसेज हैं, कंकरेंट का मतलब ये नहीं है कि वो मर्ज हो जाते हैं, दे डू नॉट मर्ज, दे ओवरलैप। इसलिए दोनों 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 सेंटेंसेस दे आर सेपरेट, दे आर इन एग्जिस्टेंस, दे आर सिंपली ओवरलैपिंग ईच अदर। तो अगर उन्होंने कम्यूट भी कर दिया तो 14 और 14 हो जाएगा, ये नहीं कि एक 14 होगा, देन 14 एंड 14। ठीक है, सो इसलिए ये भी क्लैरिफाई किया उस केस में उन्होंने, मुथु रामालिंगम वाले पे, कि वो फिर दोनों रहेंगे केसेस दोनों सेंटेंसेस अलाइव हैं, मर्ज नहीं हुए वो। अगर उन्होंने कम्यूट भी किया है तो देन 14 एंड 14। तो court cannot direct the 2 sentences to run consecutively, they have to run concurrently. ये तो है। So I hope we have answered that question. Right, sir. So one question that comes up in my mind is that, like you said, life imprisonment means the entire biological life of the accused. So then, sir, why there was a need to additionally add section 376A and other sections that the life imprisonment? हाँ, ये भी बहुत बारी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। Mean the remainder of that person's natural life. हाँ, ये कई ऑफिसर्स ने given. ये कई ऑफिसर्स ने पूछा है ये वाली बात। तो ये क्लैरिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्री हरन वाले केस में। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही है वो भी, उसमें उन्होंने कहा है कि नियरली इसमें क्लैरिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि बाकी केसेस में वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट डजंट मीन बायोलॉजिकल लाइफ। तो दैट हैज बीन सेटल्ड इन कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स बायोलॉजिकल लाइफ। इसमें सिंपली उसको एक्सप्लेन कर देने की वजह से ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन किया तो जहाँ करेंगे वहीं होगा, बाकियों में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सो दैट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय राइट। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्री हरन है केस का नाम। जी सर। And sir, can this also be interpreted like this, that in such cases there will be no remission? नहीं, remission का तो देखो, as far as the powers of government are concerned, उन पे तो कंट्रोल कुछ है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर, उनके ऊपर तो कोर्ट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट देयर पावर्स, कोर्ट कैन नॉट से। अब ये क्वेश्चन जो आपने पुट किया ना, ये केस आया था, स्वामी श्रद्धानंद वाला केस था एक सुप्रीम कोर्ट का, स्वामी श्रद्धानंद जी। उस केस में उन्होंने यही क्वेश्चन को उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, उस केस में भी ऐसे ही था कि उसको डेथ सेंटेंस नीचे से हुई
सेशन जज से हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर दी, सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये इट इज़ नॉट रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो नहीं है ये, पर हीनस बहुत है, तो इसमें डेथ सेंटेंस तो हम देना नहीं चाहते इसको, और अगर हम इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं तो 14 साल बाद निकल जाएगा इसको, क्योंकि उन्होंने कम्यूट कर देनी है जैसे करते हैं ये, तो वो 14 साल बहुत कम है। सो देन दी सुप्रीम कोर्ट सेट कि इसके बीच में इतना गैप है, 14 साल, एक कहाँ 14 साल कहाँ डेथ सेंटेंस, तो दैट गैप नीड्स टू बी फिल्ड अप। तो उन्होंने सो दे गेव ए वर्डिक्ट कि सेंटेंस कैन बी पास, ये जो जितनी हम इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ही विल रिमेन फॉर द इंटायर बायोलॉजिकल लाइफ इन प्रिजन and the government will not commute his sentence and will not remit his sentence. So that direction can be given. ये उसमें उन्होंने होल्ड किया, but this power is only available with the Supreme Court and High Court, not with the session judges. So they should not do it. They will not do it. Only Supreme Courts and High Courts they can pass. ये उन्होंने ये प्रोवाइड किया था उसमें गैप को फिल अप करने के लिए. Right, sir. So similarly, we have also seen orders wherein while convicting it is being said that there will be no remission for a period of 14 years or 20 years. So that bar has been imposed on the power of the government that even if they are going to remit, that will not be before 14 years or before 20 years of imprisonment. 14 years वाला तो आ ही गया उसमें, अगर वो उसमें कवर होता है ना, जैसे जो ऑफेंसेस हैं जिसमें डेथ प्रोवाइडेड है और आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उसको सजा दे रहे हो, तो 14 साल से पहले तो निकल ही नहीं सकता, वो तो 433A में ही लिखा हुआ है, तो इसी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना, उसी को लिख रहे हैं उसमें एज पर 433A 14 साल से पहले नहीं छोड़ा जा, तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो स्टैट्यूट ही है। सर अगर 20 बोल दे तो कि 20 तक नहीं छोड़ा, 20 नहीं, ये सेशन जज यही उसमें भी उन्होंने ये क्लैरिफाई किया हुआ कि ये पावर जो है ना, ये कहीं प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ओनली दे कैन पास द पावर। राइट सर। So then the next question is, where CJM has passed an order of conviction and the aggregate exceeds 7 years but is less than 14 years, the appeal against said order would lie to the Court of Session or to the High Court? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है अपना एडिशनल सेशन जजेस के लिए कि कहीं दे शुड रिमेन कॉशियस अबाउट दिस, क्योंकि अगर सीजीएम ऑर्डर पास कर रहा है और कंसेक्टिव सेंटेंसिंग कर रहा है, तो कंसेक्टिव सेंटेंसिंग में इट कैन एक्सीड 7 ईयर्स, कंकरेंट में तो एक्सीड करेगी नहीं, कंसेक्टिव में कर सकती है, तो अगर एक्सीड कर जाती है 7 साल से ऊपर चली जाती है, तो उसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट लाई भेजती है, इट डजंट लाई इन द कोर्ट ऑफ सेशन। ये 374 में प्रोवाइडेड है, सेक्शन 374 में ही लिखा हुआ है, तो ये इसका ध्यान रखना चाहिए, वी शुड कीप दैट इन माइंड। वो अपील जो है वो दैट विल गो टू द हाई कोर्ट, 7 साल तक तो सेशंस कोर्ट जाएगी, उससे ऊपर अगर सेंटेंस एग्रीगेट में उससे ऊपर है, एग्रीगेट देखना है ना हमने, टोटल अगर कंसेक्टिव है, जैसे उसने कर दी एक ऑफेंस के लिए 3 कर दी, दूसरे में 4 कर दी, तीसरे में 2 कर दी, तो ये टोटल 9 हो गया, तो then the figure of 7 has been exceeded. Now the appeal goes to the High Court. Okay. Adi, Karuna, are you still there? So next question is regarding section 30 CRPC. Okay. So it is where the court passes a sentence of fine. So it is usually ordered that in case of default, the convict will have to undergo a certain period of imprisonment. So sir, which provision of law permits the passing of this order? Yes. We have all been doing this. कि हमेशा मैकेनिकली हम तो करते ही रहे हैं, we have been doing it, कि जब भी जहाँ फाइन आता है उसके साथ in default of fine he will undergo imprisonment for this period. तो ये कोशिश हम नहीं करते ज़्यादातर देखने की कि ये कहाँ है, पावर कहाँ अवेलेबल है। अगर आप पीनल प्रोविजन देखो, 302 देखो, 326 देखो, कोई भी प्रोविजन देखोगे उसमें तो यही लिखा हुआ है ना, भी इसको मैक्सिमम सेंटेंस आप लाइफ दे सकते हो,
10 साल दे सकते हो, फाइन भी कर सकते हो, पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन भी इसको इम्प्रिजनमेंट की जा सकती है, उन प्रोविजन में कहीं नहीं है। तो इसके लिए एक जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो है सेक्शन 64 आईपीसी, 64 आईपीसी। उसमें ये प्रोविजन स्पेसिफिक है कि इन एनी केस जहां पर कोर्ट फाइन का सेंटेंस पास कर रही है तो उसके पास ये भी पावर होगी कि वो उसको ये इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस पास कर सकता है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। So that power is available under section 64, वहाँ प्रोवाइडेड है। उसके आगे फिर 64 के साथ कुछ और सेक्शन हैं जो रेलिवेंट है, वो 65, 66, 67 सेक्शंस हैं जो इसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो we have to read that section 64, उसमें पावर है। जी सर। So sir, next question is question number 7. Which is whether there is any limit regarding imprisonment in default of fine. हाँ, यस। तो यही जैसे हमने कहा ना, उसके बाकी एक्सप्लेन करने के लिए और सेक्शन है। 64 के बाद 65 है। सेक्शन 65 टेल्स अस द लिमिट कि कितनी सजा कर सकते हो इन डिफॉल्ट। तो उसमें लिखा हुआ है कि 1/4 ऑफ द मैक्सिमम प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। 1/4 जैसे आपकी मान लीजिए आपका ये ले लिया आपने 326 का केस ले लो। इसमें 326 का केस है, उसमें मैक्सिमम तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट था उसमें। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के जब कैलकुलेशन करनी होती है तो हम उसको सेक्शन 57 की हेल्प से 20 ईयर्स लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब 1/4 ऑफ 20 ईयर्स, तो 5 साल होगी। तो 5 साल इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट की जा सकती है एज पर सेक्शन 65 ऐसे। तो बट दिस सेक्शन 65 हैज टू बी रेड along with section 30 CRPC। सेक्शन 30 CRPC जो है ना, वो कहता है कि एज फार एज द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स आर कंसर्न, क्योंकि वो पावर तो अब मैजिस्ट्रेट जो है 326 के केस में क्या करेगा? 326 के केस में उसके पास तो पावर ही जो सब्सटेंटिव सेंटेंस है वो 3 साल से ज्यादा उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकता उसको। तो यहाँ तो कैलकुलेशन के मुताबिक इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन 5 साल की हो रही है अगर उस केस में, तो ही कैन नॉट पास दैट सेंटेंस। सेक्शन 30 इसलिए कहता है कि वो भी सब्जेक्ट टू कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट है। जब कोर्ट की कॉम्पिटेंसी कितनी है, कितनी पनिशमेंट वो कर सकता है, जितनी कोर्ट पनिशमेंट दे सकता है उस ऑफेंस के लिए, उसका 1/4। तो मैजिस्ट्रेट 326 के केस में कितनी सेंटेंस कर सकता है? 3 साल। तो 3 साल का 1/4 लेंगे हम, विच कम्स टू 9 मंथ्स। तो इसलिए अगर वो मैजिस्ट्रेट ने अगर इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट करनी है तो वो 9 मंथ से ऊपर नहीं कर सकता, 9 महीने से ऊपर नहीं कर सकता। और ये ऐसे अगर सीजीएम की पावर है तो सीजीएम 7 साल तक कर सकता है। तो इट विल बी 1/4 ऑफ 7 ईयर्स, जो कि मेरे ख्याल 21 या 22 महीने बनते होंगे, 21-22 महीने। तो वो इतनी कर सकता है सीजीएम, जो इन डिफॉल्ट कर सकता है एक ऑफेंस के लिए। ये नहीं और एवरी ऑफेंस वो तो किया जा सकता है। तो एक ऑफेंस के लिए वो मैजिस्ट्रेट 9 महीने कर सकता है, सीजीएम जो है वो 21 मंथ्स कर सकता है, और कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो 5 साल कर सकता है इस केस में। जैसे ये लाइफ आ गई तो लाइफ ही है मैक्सिमम, तो 20 साल की, इससे ऊपर तो कोई सेंटेंस होगा नहीं। तो उसकी रेंज वहां तक है कि वो अगर मैक्सिमम पनिशमेंट जो प्रोवाइडेड है वो 20 साल तक की है तो उसका 1/4, तो वो पावर है उसके पास। तो ऐसे इसमें लिमिट ये है इनके ऊपर। दिस इज द लिमिट रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 65। ओके, राइट सर। So next question is question number 8. What about the summary trials? For example, criminal case of mischief under section 427 of IPC. हाँ, यस।
आप समरी ट्रायल अगर कर रहे हो तो मैजिस्ट्रेट अगर समरी ट्रायल करेगा 427 के केस में, तो सेक्शन 262 जो है सीआरपीसी का, वो कहता है कि वो he can pass a sentence of only 3 months. He can pass a sentence of only 3 months. तो यही सेक्शन 30 कह रहा है कि जो उसकी पावर है मैजिस्ट्रेट की सेंटेंस करने की, उसका 1/4, तो इसमें उसके पास पावर सिर्फ 3 महीने की है सेंटेंस करने की। सो समरी वाले केस में, समरी ट्रायल में, इस केस में 1/4 ऑफ 3 months, तो हार्डली मेरे ख्याल कुछ दिन ही बनेंगे, 22 दिन बनते हैं इसके लिए, 21-22। तो इसलिए उसमें वहां तक कर पाएगा इम्प्रिजनमेंट डिफॉल्ट, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। Next question is question number 9. So can the court pass an order of rigorous imprisonment in default of payment of fine, or it has to be simple imprisonment in every case? Yes. नॉर्मली शायद मेरे ख्याल पता नहीं, ज्यादातर ऐसा ही देखा मैंने करते हुए कि ऐसा ही करते हैं लोग, पर ये इसमें ये सेक्शन 66 है इसका, वही आईपीसी का जिसमें इसके बारे में प्रोवाइडेड है। सेक्शन 66 आईपीसी टेल्स अस कि जो आप मेन ऑफेंस के लिए कर सकते हो वही आप इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट के लिए कर सकते हो। जैसे अगर मेन ऑफेंस के लिए आप रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर सकते हो तो आप इसमें भी रिगरस कर सकते हो। अगर आप उसमें सिर्फ सिंपल ही कर सकते हो तो फिर आप इसमें भी सिंपल ही कर सकते हो, फिर आप इसमें आरआई नहीं कर सकते। और अगर आप उसमें दोनों ऑप्शन दे रखी हैं, आरआई और एसआई, तो इसमें भी दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, आरआई और एसआई, फिर आपके पास दोनों ऑप्शन है। और जहाँ कुछ भी ना लिखा हो, कहीं ऐसे भी सेक्शन है, 498A है जैसे, उसमें लिखा ही नहीं हुआ आरआई है एसआई, उसमें क्या होगा? जहाँ लिखा ही नहीं हुआ आरआई है एसआई, तो उसमें जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ना पड़ेगा। जनरल क्लॉजेज एक्ट कहता है कि इम्प्रिजनमेंट मीन्स इट कैन बी रिगरस और इट कैन बी सिंपल, दोनों ही आ जाते हैं। तो फिर वो आरआई और एसआई दोनों ऑप्शन आ गई उसमें, तो कैन बी आरआई और एसआई मेन के लिए, और वही उसके इन डिफॉल्ट के लिए वही आएगी, सेम उसके लिए भी वैसे आएगी। दैट इज हाउ इट इज डन। So next question is question number 10. A magistrate can pass a sentence of imprisonment up to 3 years for each offence. Whether the imprisonment in default of fine is it included in that limitation of 3 years? Can the order of imprisonment in default run concurrently with the substantive sentence? हाँ, ये भी है इसमें, क्योंकि सेक्शन 29 के मुताबिक तो मैजिस्ट्रेट की 3 साल की पावर है उसको सजा देने की। अगर उसने आप 326 का केस ट्राई किया, उसने 3 साल सजा कर दी और उसमें फाइन इम्पोज किया, फाइन के इन डिफॉल्ट कर दिया उसको 9 months, तो इसका मतलब वो जेल में, अगर उसने फाइन पे नहीं किया तो जेल में उसको रहना पड़ेगा 3 साल और 9 महीने। यही क्वेश्चन अराइज होगा भी, ये हैज ही एक्सीडेड हिज पावर, वो उसको एक ऑफेंस के लिए उसने, जहाँ उसके पास 3 साल की पावर थी, उसने 3 साल 9 महीने के लिए अंदर भेज दिया उसको। हैज ही एक्सीडेड हिज पावर? द आंसर इज नो, क्योंकि ये स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है। सेक्शन 64 में भी यही लिखा हुआ है, सेक्शन 30 में भी लिखा हुआ है कि ये जो इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट होती है, दिस इज इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द मेन ऑफेंस। तो जो उसके लिए है उससे अलग है ये, तो ये उसकी पावर वो 3 साल की वो जो सी ठीक है, और 3 साल के बाहर है ये, तो इसलिए वो दोनों कर सकता है। 3 years अप टू 3 years उसको कर सकता है, 9 महीने इसके कर सकता है। एंड दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, ये भी याद रखना। जो इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये पेनल्टी है। दिस इज अ पेनल्टी, दिस इज अ मोड ऑफ कोर्सिव मोड ऑफ रिकवरिंग द फाइन, ताकि वो फाइन का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराए, उसके लिए है ये उसको कोई सजा थोड़ी मिली है, उसके मेन ऑफेंस के लिए तो सजा नहीं मिली हुई ना, ये तो फाइन डिपॉजिट कराने के लिए पेनल्टी है, इट इज नॉट अ पनिशमेंट, इसलिए वो कर सकता है, कैन डू इट, वो अलग है। ये दोनों सेक्शन में भी लिखा हुआ। वैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी एक उसमें, वो ओएम शेरियन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला थी,
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो एम शेरियन, शेरियन CHERIAN, शेरियन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, उसमें भी ये क्लियर किया हुआ है क्लैरिफाइड दिस। Right, sir. So, the next question, question number 11. Like we have already discussed one of the limitation which is given in section 31. This question is about the second limitation which is contained in section 71. So, can you please elaborate what is section 71 IPC? जी sir. ठीक बात है। सेक्शन 31 CRPC में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 IPC, उसका क्या मतलब है? ठीक है, तो ये पहले सेक्शन 71 को समझना जरूरी है। सेक्शन 71 है क्या, और ये वैसे भी सेंटेंसिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट भी है, और इसको हम यूज बहुत कम करते हैं। वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस, वी शुड बी अवेयर। सेक्शन 71 जो है वो तीन पार्ट्स हैं उसके। सेक्शन 71 के 3 एक्सेप्शंस क्रिएट की गई हैं। पहला पार्ट जो है वो ये कहता है कि अगर आपने किसी आदमी को 10 थप्पड़ मार दिए तो उसके आपने तो दैट मीन्स यू हैव कमिटेड, अगर एक थप्पड़ जो मारोगे तो दैट इज एन ऑफेंस अंडर 323। दूसरा थप्पड़ इज ए सेकंड ऑफेंस। तीसरा ऑफेंस है 10 थप्पड़ मीन्स 10 ऑफेंसेज हैं। ही हैज कमिटेड ऑफेंस 10 टाइम्स, तो आपको 10 बारी उसके 10 सजा दे सकते हैं कि एक महीने की या एक ही बारी करनी है। तो उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर ऐसा केस है जिसमें कोई ऑफेंस कमिट करता है और जिसके पार्ट्स हैं ईच ऑफ विच इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, तो वो उनमें से एक पार्ट के लिए ही आप उसको सजा दो। ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये 10 थप्पड़ अगर किसी ने लगाए हैं तो उसको एक थप्पड़ के लिए जो है उसकी जो सजा है, तो यू हैव टू पनिश हिम वंस नॉट 10 टाइम्स। ये पहला है उसका। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 70। सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 71 सेज कि अगर जो ऑफेंस कमिट किया गया, जो एक्ट था उसका टोटल एंटायर ट्रांजैक्शन, वो 2 डेफिनेशन में फॉल कर जाता है। 2 डेफिनेशन ऑफ लॉ। इसको एग्जांपल से समझना पड़ेगा। मान लीजिए एक देयर इज अ अनवेड मदर, शादी हुई नहीं, बच्चा हो गया, तो नाउ शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट चाइल्ड। तो वो जाकर सर्दी की रात है, कहीं लोनली जगह पर जाकर उसको बच्चे को रख के आ जाती है। एंड इट्स ए कोल्ड नाइट, दिसंबर की ठंड पड़ रही है, तो सुबह वो बच्चा मरा हुआ मिलता है। अब इस केस में क्या ऑफेंस कमिट हुआ? उसने तो ये उसका जो एक्ट है वो क्या है? उसको बच्चे को ले जाके शी हैज लेफ्ट दैट चाइल्ड एट अ लोनली प्लेस, बट दिस एक्ट इज रिजल्टिंग इन 2 ऑफेंसेस। एक नंबर 1 तो अबंडनमेंट है 317, और दूसरा जो है वी कैन प्रिज्यूम दैट शी हैड नॉलेज कि इतनी ठंड पड़ रही है, इसमें ये बच्चा शायद लाइकली टू डाई, इसकी डेथ हो सकती है, तो वो 304 में आ जाएगा। तो दोनों चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं इसके खिलाफ। 317 का चार्ज भी फ्रेम किया जा सकता है और 304 का चार्ज भी फ्रेम किया जा सकता है, और दोनों में ट्रायल चल सकता है, दोनों में इसको सेंटेंस किया जा सकता है, पनिशमेंट दी जा सकती है। पर सेक्शन 71 ये कहता है कि इस केस में जब वो 2 डेफिनेशन में फॉल कर रहा है वही एक्ट, तो उसको आप जो सजा दोगे उसके ऊपर उन्होंने कैप लगा दी, क्योंकि वो एक्चुअली लॉ वांट्स टू ट्रीट इट एज है, तो एक्चुअली तो एक ही ऑफेंस है, उसने तो एक ही किया, पर आगे डेफिनेशन 2 में फॉल कर गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो दोनों ऑफेंसेस के लिए या तीनों ऑफेंसेस के लिए जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट जहां तक है उसको एक्सीड नहीं कर सकते आप कंजेक्टिवली। अगर आपने कंजेक्टिव कर दी, आपने चार्जेस दोनों लगा दिए, जैसे इसमें 317 में भी लगा दिया चार्ज, 304 में भी लगा दिया। 317 में भी आपने पनिशमेंट उसको दे दी। 317 में कितनी पनिशमेंट है? 7 साल है और 304 में 10 साल है। तो अगर आपने 317 में 5 साल उसको सजा कर दी और 304 में उसको 7 साल सजा कर दी और कंजेक्टिव कर दिया उनको, तो वो एग्रीगेट तो हो गया 12 साल। तो ये 12 साल गलत हो जाएगा, क्योंकि दिस विल एक्सीड
जो मैक्सिमम इसमें कितनी कर सकते थे, एक हाईएस्ट जो पनिशमेंट है वो 304 में 10 साल की है, तो 10 साल को एक्सीड नहीं कर सकता जो भी मैक्सिमम इसमें प्रोवाइडेड, तो यू कांट एक्सीड 10। तो वो इसमें आपने कंजेक्टिव कर दी तो वो ये 12 बन गई, दैट वुड बी रॉन्ग। तो आप उसमें उसके अगर आप कंकरेंट कर दोगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए एक ये रीजन है जिसलिए हम ये कहते हैं ना भाई हर ऑर्डर में एवरी जजमेंट यू फाइंड कि ये दीस सेंटेंसेस विल रन कंकरेंटली, ये लिखा होता है। वो ऐसी ऐसी चीज़ों से बचने के लिए लिखा होता है कि टू अवॉइड एनी सच कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें ये अगर कंजेक्टिव करते हो आप तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इट शुड नॉट एक्सीड। दो डेफिनेशन में अगर वो फॉल कर रहा है तो फिर आप जो भी उसमें मैक्सिमम प्रोवाइडेड है उसको एक्सीड नहीं कर पाते, जो एक ऑफेंस के लिए मैक्सिमम प्रोवाइडेड। ये सेकंड पार्ट है। एक सेक्शन 71 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है उसके पार्ट्स हैं ए बी सी डी, और ए और बी, ए प्लस बी जो है वो एक ऑफेंस बन रहा है, सी प्लस डी जो है दूसरा ऑफेंस बन रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंटायर ट्रांजेक्शन थर्ड ऑफेंस बन रहा है। तो देयर आर सम केसेस ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसे भी हो जाते हैं। इसके लिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, देयर इज अ पर्सन हु वांट्स टू कॉज इंजरी टू समबॉडी, तो उसने क्या किया, अपना लाठी उठाई और किसी उसके घर में घुस गया और जाके उसको लाठी से वार किया जिसकी वजह से उसकी हड्डी टूट गई। अब इस केस में 3 ऑफेंसेस बन रहे हैं। देखो, जब उसने उसके घर में कमिटिंग हाउस ट्रेसपास विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इंजरी, वो इट्स एन ऑफेंस अंडर 450 है ना, 455 में आ जाता है वो। और वो घर के अंदर जाकर अगर उसने उसके ऊपर लाठी मारी जिससे उसके फ्रैक्चर हो गया तो वो ग्रीवस इंजरी 325 हो गया, दैट इज द सेकंड ऑफेंस। और थर्डली है 459 ये कहता है कि ग्रीवस इंजरी व्हाइल कमिटिंग हाउस ट्रेसपास, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है कि अगर हाउस ट्रेसपास करके कोई किसी को ग्रीवस इंजरी कॉज कर देता है देन ही इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 459, जिसकी पनिशमेंट जो है एनहांस्ड पनिशमेंट है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये तीनों ऑफेंसेस बन रहे हैं उसमें, तो आप तीनों ऑफेंसेस का चार्ज तो लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन फ्रेम 3 charges, you can try him for 3 charges, you can convict him for 3 charges, you can even punish him for 3 charges, but the punishment should not exceed what is the maximum provided for any of those offenses. इस केस में जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड है विच मीन्स 20 years कैलकुलेशन के लिए, तो 20 से ऊपर नहीं टोटल जाना चाहिए कंजेक्टिव का इसका। तो ये दिस इज सेक्शन 71। अब उसको सेक्शन 31 के कंटेक्स्ट में हम देख रहे थे। क्वेश्चन क्या था आपका कि सेक्शन 31 में This is the second limitation under section 31 CRPC. First we have already discussed. Yes. तो सेक्शन 31 में सेकंड लिमिटेशन ये थी, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71, क्योंकि सेक्शन 31 ये कहता है कि आप जितनी भी मैक्सिमम प्रोवाइडेड है आप मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए उसको ट्राई कर रहे हो, 3 ऑफेंसेस के लिए ट्राई कर रहे हो, तीनों में आप जो मैक्सिमम प्रोवाइडेड है आप दे सकते हो उसको, बट 71 सेज नो, यू कैन नॉट डू इट इन दीज केसेस। 3 केसेस में आप नहीं कर पाओगे। अब जैसे इस केस में हमने ये एग्जांपल लिया 317 और 304 में, तीनों उसमें 7 साल है, उसमें 10 साल है, तो मैक्सिमम प्रोवाइड ये नहीं कि उसमें भी 7 कर दो उसमें 10, ये नहीं कर पाओगे आप। उसमें उन्होंने ये कहा भी जो एक ऑफेंस के लिए मैक्सिमम प्रोवाइडेड है वहां तक कर सकते हो, इन ऑफेंसेस के लिए ये 3 कैटेगरीज के लिए। सो इट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 71, इसलिए दैट इज व्हाट इट मींस। Right. Next is question number 12, sir. So it is whether awarding compensation to the victim in every criminal trial is mandatory, and whether there is any provision for awarding interim compensation, and how is this compensation is to be assessed. What is the procedure basically? मैंडेटरी तो नहीं है,
कॉम्पनसेशन आपने जरूर देनी है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यू हैव टू पास एन ऑर्डर, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, क्योंकि आप अब तो ये सारे सब एवरी ऑफिसर नोज कि इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कॉम्पनसेटिंग द विक्टिम्स। तो विक्टिम कॉम्पनसेशन के लिए माइंड अप्लाई करके उसमें लिखना कि मैं दे रहा हूं या नहीं दे रहा, और क्यों दे रहा हूं और क्यों नहीं दे रहा हूं, ये मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी है, देना मैंडेटरी नहीं है कि आपने देनी ही है कॉम्पनसेशन हर विक्टिम को, पर आपका ऑर्डर पास करना मैंडेटरी है। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड यू हैव टू से कि मैं इस केस में क्यों दे रहा हूं और क्यों नहीं दे रहा हूं। दैट पार्ट इज मैंडेटरी। इस पे कौन सी जजमेंट थी? वो है अंकुश शिवाजी वाली। अंकुश शिवाजी की 2013 की जजमेंट है उनसे, उसमें उन्होंने ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें उन्होंने ये इसकी वर्डिंग में पढ़ देता हूँ आपको। वाइल द अवार्ड और रिफ्यूजल ऑफ कॉम्पनसेशन इन अ पर्टिकुलर केस may be within the court's discretion, but there exists a mandatory duty on the court to apply its mind to the question in every criminal case. Application of mind to the question is best disclosed by recording reasons for awarding or refusing compensation. तो ये मैंडेटरी है कि आपने लिखना है उसमें कोई क्यों दे रहा हूँ क्यों नहीं दे रहा हूँ, ये लिखना इस केस में सुप्रीम कोर्ट की है। और इसमें उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था भाई किस स्टेज पे आपने ये करना है, क्वेश्चन ऑफ कॉम्पनसेशन कौन सी स्टेज पे आपने, व्हेन डू यू गो इनटू दिस क्वेश्चन, कॉम्पनसेशन वाला कब करते हो। तो ये है कि जब आपने उसको कन्विक्शन के बाद वाला जो स्टेज है, दैट इज द अप्रोप्रिएट स्टेज। कन्विक्शन के बाद एंड बिफोर पासिंग सेंटेंस, दैट इज द अप्रोप्रिएट स्टेज। उस स्टेज पे आपने एक समरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हो। समरी इंक्वायरी में आप एफिडेविट ले सकते हो या किसी की स्टेटमेंट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट ले सकते हो, उसमें लेके एंड ऑडियो सेशन। तो सेशन कोर्ट्स तो सब फैमिलियर हैं, जैसे एमएससीटी में करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें जो फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें कि इसको लॉस कितनी हुई है, कितनी इंजरी है, पेन एंड सफरिंग कितनी है, ठीक है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हैं, ऑल दो थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। और गैस वर्क का कोई एग्जैक्ट नहीं है कि आपने एग्जैक्टली, इट कैन इन्वॉल्व सम गैस वर्क आल्सो। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आपने वी ट्राई टू रीच ए फिगर, भाई इसको कितनी मिलनी चाहिए। उसमें उसकी कैपेसिटी भी देखना बहुत ज़रूरी है जो एक्यूज है कि वो कितनी दे पाएगा। अगर मान लीजिए एक्यूज एक रिक्शा चलाने वाला है और आपने असेस कर दी भाई 1 लाख रुपया कॉम्पनसेशन मंथली, वो कहाँ से देगा इतना, आपने उसको ही डिफॉल्ट भी कर दोगे मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, वी शुड कीप दोस थिंग्स इन माइंड। तो मैंडेटरी ये पार्ट है इसका। दूसरा क्या था इसका पार्ट, बोल दिया था क्वेश्चन का। Is there any provision for awarding interim compensation? हाँ, interim What's compensation. this compensation to be assessed? Yes, interim compensation देखो इसमें 357 में तो कहीं प्रोविजन है नहीं, पर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उसमें ये आई थी सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015 की जजमेंट आई। उसमें उन्होंने कहा था कि ये ड्यूटी है हर कोर्ट की, जब वो कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है ऑफेंस की तब भी, और ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ ट्रायल इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सी कि विक्टिम को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है जिसने उसको इमीडिएट इंटायर एंड कॉम्पनसेशन चाहिए हो। उसका ध्यान रखना ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है। जिस स्टेज पे उसको लगता है, तो विद एप्लीकेशन और विदाउट एप्लीकेशन कोर्ट जो है वो मोटो भी कर सकता है अगर उसको लग रहा है कि भाई इसको जो है इसकी प्रॉब्लम है, इसको तो इसको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। तो इंटायरम कॉम्पनसेशन के लिए
इट कैन मेक ए रिकमेंडेशन टू दी लीगल सर्विस अथॉरिटी। और उनके वो अब 357A बन ही गया है, 357A में भी प्रोविजन है, उनके भी है, और रिकमेंडेशन के ऊपर भी वो करेंगे। अगर मैजिस्ट्रेट की रिकमेंडेशन आती है तो इंटरिम कॉम्पनसेशन का प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से, तो इट कैन बी पेड। हाउ इज द कॉम्पनसेशन असेस्ड, वो मैंने अभी बताया ही आपको। तो इसमें प्रोसीजर क्या है, वो ये समरी प्रोसीजर है। बिफोर सेंटेंसिंग करते हैं नॉर्मली इसको किया जाता है। समरी ट्रायल समरी प्रोसीजर से उसका एफिडेविट ले सकते हैं, जान लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो वी कैन डू दैट एंड वी कैन रीच इट। राइट। और एक जजमेंट और भी है जिसमें ये चीज फैक्टर्स बताए हुए हैं क्या क्या कंसिडर करना है, वो है इसकी मनोहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2015 की, वो भी 2015 की जजमेंट, मनोहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। असेसमेंट ऑफ जस्ट कॉम्पनसेशन कैसे की जाती है। ओके, Right, sir. So the next question is, how this order of compensation to the victim is to be enforced? And sir, is there any law which mandates that sentence in default of payment of compensation can be imposed? हाँ, कॉम्पनसेशन जो है सेक्शन 431 है, सेक्शन 431 CRPC जो ये हमें कहता है कि कोई भी अमाउंट जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है पेमेंट के लिए, जिसका कोई प्रोविजन नहीं है रिकवरी का, तो स्पेसिफिकली कोई प्रोवाइड नहीं किया गया, तो 421 जो फाइन का प्रोसीजर है वही फॉलो किया जाएगा। जो फाइन की रिकवरी के लिए प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वही फॉलो किया जाएगा। इसलिए 431 यहाँ अप्लाई करता है। 431 के मुताबिक हम 421 यूज कर सकते हैं। 421 में तो आप वो उसकी अटैचमेंट कर सकते हो, सेल कर सकते हो प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, और उसके लिए फाइन की, क्योंकि ये 431 कहता है जो भी फाइन के लिए किया जाएगा, फाइन के लिए हम इम्प्रिजनमेंट एंड डिफॉल्ट भी कर सकते हैं उसको। जैसे हमने सेक्शन 64 की ऑलरेडी बात की है, सेक्शन 64 IPC में प्रोवाइडेड है कि फाइन की पेमेंट के लिए इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट का ऑर्डर किया जा सकता है। इसलिए 431 रेड विद सेक्शन 64 IPC we can pass an order of imprisonment in default of payment of compensation। और इसमें ये फर्क भी है, इसमें जैसे फाइन का 421 में लिखा हुआ है कि अगर उसने वो इन डिफॉल्ट वाली अगर उसने सजा काट ली तो उसके बाद रिकवरी अगर आपने करनी है तो फिर उसके लिए स्पेशल रीजन देने पड़ते हैं मैजिस्ट्रेट को, तभी कर सकता है रिकवरी। बट दैट डजंट अप्लाई टू कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन तो रिकवर होगी उसमें वो merely because he has undergone the imprisonment and default, it will not nullify that will still remain intact। तो उसके बाद भी वो लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती कॉम्पनसेशन पे जो फाइन पे होती, उसके बाद भी रिकवरी रहेगी। रिकवरी उसकी तो करनी ही है, you have to wait। तो मेरे ख्याल यही था कुछ। जी sir. So next is question number 14. So can the court award compensation under section 357(3) when fine is part of the sentence? हाँ, ये तो 357(3) पढ़ो ना। 357(3) में लिखा है where fine is not a part of the sentence, उसी में लिखा हुआ जी। 357(3) में लिखा हुआ है where fine is not part of the sentence। तो 357(3) तो वहीं लागू होगा जहां सेंटेंस में फाइन नहीं, वहीं लागू होता। अगर फाइन है तो फिर फाइन में से ही देना। Right. So next question is whether there is any limit of compensation which can be awarded in the section 357 subsection 3. No, there is no limitation। 357(3) में कुछ नहीं लिखा हुआ सर, कोई लिमिटेशन नहीं, आप कॉम्पनसेशन जो बनती है उसको दे सकते हो। और इसके ऊपर एक जजमेंट भी है के भास्करन वर्सेस शंकरन
ये 1999 की है, वॉल्यूम 7 SCC, पेज 510. So there is no limit. Right, sir. So the next question is, what happens in the case of acquittal or discharge? Can the victim still be compensated in such cases? Yes. एक्विटल हो जाए चाहे डिस्चार्ज हो जाए तो ही कैन स्टिल बी, अगर कोर्ट फील्स कि ये द विक्टिम नीड्स टू बी रिहेबिलिटेटेड, तो इट कैन मेक ए रिकमेंडेशन टू द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अंडर सेक्शन 357A कि इसको कॉम्पनसेट किया जाए. इट कैन बी डन. कोई प्रॉब्लम. Right, sir. So the next question, next set of question is on the Probation of Offenders Act, and the next question is question number 17. So where Probation of Offenders Act has come into force in a particular state, can the court pass orders under section 360 CRPC? No, it cannot. जहाँ पर once the Probation of Offenders Act has come into force, ये सेक्शन उसका आई थिंक इट्स 19 प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जब ये व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स तो 360 सीरीज टू अप्लाई 360. और ये इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि ये अपनी दलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2006, वॉल्यूम 6 SCC, page 159. Anji. So next question is question number 18. So can you please elaborate as to what are the basic differences between section 360 CRPC and the provisions of Probation of Offenders Act? Provision of Offenders Act ज़्यादा लिबरल है, ज़्यादा वाइड है उससे. जैसे उसमें एज की लिमिटेशन है, 360 में है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में किसी भी एज के लिए किया जा सकता है, इसमें लिमिटेशन है. और प्रीवियस कन्विक्शन वाली जो है वो भी लिमिटेशन 360 में है, इसमें नहीं है. देयर इज नो सच लिमिटेशन. इन दैट कंटेक्स्ट इट्स मोर लिबरल. यस. Right, sir. So question number 19 is whether the probationary provisions are applicable to offences which are punishable with minimum sentences. हाँ, ये काफी डिस्प्यूटेबल सा रहा, काफी झगड़ा है इसका. The answer is कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो अप्लाई करता है चाहे मिनिमम सेंटेंस भी प्रोवाइडेड हो, तब भी अप्लाई करता है. शॉर्ट आंसर तो ये है इसका. अब ये केस इसमें था, एक पहले सुप्रीम कोर्ट का आया था, ईश्वर दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ईश्वर दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट केसेस, इतना सुप्रीम कोर्ट, पेज 1295. वो था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कहते थे उस टाइम उसको, PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, उसके ऊपर था. उसमें मिनिमम सेंटेंस प्रोवाइडेड था. तो मिनिमम सेंटेंस प्रोवाइडेड था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला गया भी इसमें क्या प्रोबेशन की जा सकती है. तो सुप्रीम कोर्ट सेट की जा सकती है, हालांकि की नहीं उन्होंने, बट दे डिस्कस दिस थॉरली कि इसमें की जा सकती है. कोई मिनिमम सेंटेंस प्रोवाइड होने से जो है उसको आप उस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को हाउस नहीं कर सकते. प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो एक बेनिफिशियल प्रोविजन है और इसको इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत लिबरली की जानी चाहिए. और उसमें नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज भी है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, ये भी लिखा हुआ उसमें. ठीक है. तो ये 1958 में आया था ये जो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट. तो उसमें ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज थी. प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट उससे पहले का ही था ऑलरेडी.
प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट उस पहले है, उसमें मिनिमम सेंटेंस, उसमें मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। उसके बाद ये एक्ट आ रहा है जिसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन एनी। इसमें पीओ एक्ट की आप उसको बेनिफिट दोगे। इसका मतलब लेजिस्लेचर जो है, और लेजिस्लेचर इज प्रिज्यूम टू बी अवेयर ऑफ ऑल दी एक्ट्स, खाली पीएफ है नहीं, बहुत सारे एक्ट्स थे जिनमें मिनिमम सेंटेंस प्रोवाइडेड था। तो उसमें इन्होंने ये कह दिया नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कह दिया। और एक सेक्शन 18 है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, जिसमें उन्होंने सेक्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 5 यानी कि जो अब 13 है, 13(2), उसको उसमें भी मिनिमम है, उसको एक्सक्लूड कर दिया। उसमें कहा भी उसमें प्रोबेशन नहीं कर सकते आप। तो एक ही जितने थे ऑफेंसेस, 7-8 एक्ट्स उस टाइम थे जो उनसे जिनमें मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड थी, उनमें से उन्होंने एक ही चुना जिसको उन्होंने कहा भी इसमें आप प्रोबेशन नहीं कर सकते, बाकियों में नहीं कहा। ये सारी रीजनिंग ईशर दास वाले केस में दे रखी है उन्होंने कहा अगर ऐसा होता इसका मतलब, तो फिर तो ये इसको क्यों एक्सक्लूड, एक को क्यों एक्सक्लूड करते हैं? ये तो फिर सबके लिए कहते हैं कि सब सारे जहां पर भी मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वहां आप प्रोबेशन नहीं कर सकते। फिर तो ये लिखते, ये तो नहीं लिखा उन्होंने तो ये लिखा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी। इसलिए खाली मिनिमम हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ईशर दास वाले केस को फॉलो जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था उसके बाद आया था प्यारअली वर्सेस महादेव। ये 1974 का है केस है, 1974 में आया था कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें भी वही सेम केस था फूड एक्ट का। उसमें उन्होंने ईशर दास को फॉलो करते हुए कहा कि हाँ कि मिनिमम जहाँ है वहाँ, जैसे ईशर दास केस में होल्ड किया गया है कि जहाँ मिनिमम सेंटेंस प्रोवाइडेड हो वहाँ भी प्रोबेशन की जा सकती है, पर उसमें भी नहीं की उन्होंने, पर की जा सकती है उन्होंने कहा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी यही व्यू ली। उसके बाद एक फुल बेंच जजमेंट अपने हमारे हाई कोर्ट की है, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वो है 19, वो आई थी 1983 में, 1983 क्रिमिनल लॉ जर्नल, 1983 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1218। तो उसमें भी सेम वो एक्साइज एक्ट का केस था, एक्साइज एक्ट का, उसमें भी मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब थी। तो उसमें भी उन्होंने ईशर दास को रेफर करते हुए और यही आर्गुमेंट्स सारी डिस्कस करके उन्होंने कहा भी मिनिमम सेंटेंस प्रोवाइड होने से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। मिनिमम सेंटेंस चाहे प्रोवाइडेड हो, प्रोबेशन ऑफेंडर से फिर भी लागू रहता है, की जा सकती है। पर वो उसमें भी उन्होंने एक्साइज एक्ट का केस था, उसमें भी की नहीं उन्होंने, क्योंकि वो तो डिफरेंट है कि नेचर ऑफ ऑफेंस को देखते हुए उन्होंने डिनाई कर दी। पर उन्होंने कहा भी मिनिमम सेंटेंस होने से नहीं डिनाई किया। अब इसके बाद कॉन्ट्ररी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है? एक जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की, अभी आई है, उसका क्या नाम था उसका, मोहम्मद हाशिम वर्सेस उत्तर प्रदेश, 2017 की जजमेंट। वो डाउरी एक्ट का केस था। उसमें एक ये लाइन लिख दी, हालांकि किया उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि जहां मिनिमम हो वहां पर प्रोबेशन ऑफेंडर से प्रोबेशन नहीं की जा सकती, ये लिख दिया। पर उस केस में ईशर दास वाला केस किसी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया, ना किसी ने रेफर किया उसको, भाई ये ईशर दास वाला केस है, वो कहीं डिस्कशन नहीं है। तो इसलिए जो वो व्यू है वो आई थिंक दैट शुड प्रिवेल, जो पहली व्यू थी, जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी रेफर किया हुआ है, हमारे फुल बेंच ने भी रेफर किया हुआ है। तो इसमें क्योंकि वो जजमेंट ही पेश नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ऐसा व्यू दे रखा है। सो जहाँ मिनिमम हाउस से खाली मिनिमम सेंटेंस से उसका हाउस नहीं होती, प्रोबेशन की जा सकती अगर बाकी चीजें ठीक हो। Right, sir. The next question is question number 20, which is so section 309 subsection 2 CRPC provides that no adjournment shall be granted only for the purpose of enabling the accused to show cause against the sentence proposed to be imposed on him.
So, sir, still can there be a possibility that he be granted an adjournment, be granted a date to produce lead some evidence on the question of sentence? हाँ, ये जो है ना, पहले एक संता सिंह वाला केस आया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि 235 में जैसे हियरिंग वर्ड यूज किया ना, हियरिंग इज गिवन टू दी एक्यूज्ड। पहले तो ये प्रोविजन ही नहीं था, ये बाद में अमेंड हुआ हियरिंग वाला, हियरिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि पहले सिर्फ गिल्ट उस पर होता था, द फोकस वाज ऑन द क्राइम, नाउ द फोकस इज आल्सो ऑन द क्रिमिनल। अब लॉ ये चाहता है कि पनिशमेंट आपने किसको कितनी देनी है वो पर्सनलाइज्ड करना पड़ता है आपको, कि उस हाउ डू यू पास ए सेंटेंस। सेंटेंस जो है एक ही ऑफेंस कर रखा है, मान लीजिए ये सेंटेंसिंग का ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक आदमी जो जिसको 5-6 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला, वो एक दुकान के अंदर घुस के एक ब्रेड चोरी कर लेता है, और एक आदमी है जो करोड़पति है, वो सिर्फ मजे के लिए अपना ब्रेड उठा के निकल आता है बाहर। अब ऑफेंस तो दोनों ने वही किया है, सेम ऑफेंस थेफ्ट का, तो आप दोनों को एक जैसी पनिशमेंट दोगे क्या? यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन सो मेनी थिंग्स, कि वो उसने क्यों किया और उसने क्यों किया, उसको सोसाइटी को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेटरेंस कहाँ है, रिफॉर्मेटिव पॉलिसीज क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा खुद एक फील्ड है सेंटेंसिंग का। बल्कि यहाँ तक सजेशन दी जा रही है कि ये जो सेंटेंसिंग पार्ट है ना, ये इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ होल्डिंग ए पर्सन गिल्टी, कन्विक्शन वाला स्टेज होता है, वो जुडिशियल ऑफिसर कर रहा है, तो सेंटेंसिंग पार्ट शुड बी डन बाय समबडी एल्स जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जिसको जो प्रोबेशन ऑफिसर्स की रिपोर्ट ले सकता है, उसका बैकग्राउंड दे सकता है, उसके रीजन सारे देख सकता है, और रिफॉर्मेशन के क्या चांसेस हैं वो देख सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए उस कंटेक्स्ट में उस संता सिंह वाले केस में उन्होंने कहा था हियरिंग का मतलब क्या है, कि आपने हियरिंग वुड इंक्लूड टेकिंग ऑफ एविडेंस ऑल्सो, हियरिंग इंक्लूड्स टेकिंग ऑफ एविडेंस। तो खाली इसमें ये क्योंकि इन्होंने लिख दिया कि उसी दिन आप एडजर्न नहीं करोगे, आप जिस दिन आपने सुनाया उसी दिन आप सेंटेंसिंग पे भी उसी दिन आप करिए, तो द सुप्रीम कोर्ट सेज कि नहीं, आप अगर वो आपको एक्यूज रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे इस पॉइंट पे एविडेंस देना है, आई हैव समथिंग टू से, या कोर्ट खुद फील कर रहा है भी हाँ इस पे एविडेंस आना चाहिए, तो उसमें कोई बार नहीं है, आप एडजर्न कर सकते हो, यू कैन एडजर्न इट। एंड स्पेशली डेथ केसेस में तो उन्होंने स्पेशली कहा, ये 3 जजेस बेंच था, रामदेव चौहान वाला केस है, रामदेव चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ असम, ये है 2001 का केस है, 2001 वॉल्यूम 5 SCC पेज 714। ये 3 जजेस बेंच था, उसमें इन्होंने ये कहा भी हाँ जहाँ भी आपको ठीक लगता है तो आप एडजर्न कर सकते हैं। हाँ, कोशिश ये होनी चाहिए शॉर्टेस्ट अर्लीस्ट पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है, जिसमें नहीं जरूरत है उसको मत कर एडजर्न करो, पर जहाँ आपको लगता है या वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे कोई स्पेशली कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट देना है, तो आप एडजर्न कर सकते हैं, तो you can use that authority, Ramdev Chowhaन. Right. So, before moving on to the last question, I would request the attendees to kindly post their questions, if any, on the question and answer section. We have already received 2 questions. So the last question is, how does the court decide whether a sentence should run consecutively or concurrently? ये तो हमने पहले उसमें we have already जैसे सुनील कुमार वाले केस में भी उन्होंने अभी बताया, सुनील कुमार वाला केस इसी पॉइंट पे, इसमें उन्होंने कहा है कि डिस्क्रिशन टोटली है, बाकी इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, ग्रेविटी ऑफेंस क्या है और प्रोपोर्शनेट कितनी पनिशमेंट इसको मिलनी चाहिए कितने ऑफेंस के लिए, so all those things are taken into consideration. Right. तो मेरे ख्याल टाइम तो हमने ऑलरेडी वी हैव एक्सीडेड आवर टाइम, अगर कोई खास कोई इंपॉर्टेंट है का क्वेश्चन तो यू कैन टेक इट, नहीं तो
ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो we can hold another webinar also. अगर कोई So we question have आते just हैं. 3 questions. Most of them are also answered. So one question is there. Can default imprisonment run concurrently? No, it cannot. Ji. So next question is whether a detailed order is required to be passed before sending a case under section 325 CRPC to the net CJM if it is in the opinion of the magistrate that more severe punishment is to be passed. Yes, it has to be. So one more question. If a sentence of more than 3 years is awarded in aggregate, which consists of 2 years for each offence, that is 4 years in total and shall run consecutively, then whether under section 389 subsection 3 application for suspension of sentence is maintainable. वो एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन 389(3) में जो है ना, उसमें दो चीजें हैं. अगर ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, ये देखना पड़ेगा आप. अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो एक्सीडिंग 3 years, नो, द आंसर वुड बी नो. इफ इट इज बेलेबल, द आंसर इज यस. एंड द पर्सन शुड हैव बीन ऑन बेल ड्यूरिंग द ट्रायल. वो भी कंडीशन है उसमें. ये दो चीजें होनी चाहिए. Okay then. So no other query has been received. Right. So one more query जो अभी आई है हमारे पास, which is whether sentence can be passed in both section 337 and 304 capital A IPC for death of same person in accident. जहाँ 304A में करोगे आप तो 337 में क्यों करोगे उसके लिए? 304A would cover 337. It is an aggravated form of the same offense. Aggravated form of the same offense. Right, sir. So we have received one more question, which is kindly explain power of magistrate under section 61 of the Punjab Excise Act, where minimum fine is provided. मिनिमम सेंटेंस उसमें अभी हमने एक्सप्लेन किया है. उसमें प्रोबेशन के पॉइंट पे है ना कि प्रोबेशन का कोई बार नहीं है, चाहे मिनिमम सेंटेंस हो चाहे मिनिमम फाइन हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. प्रोबेशन पर प्रोबेशन की नहीं जाती क्योंकि वी हैव टू कीप इन व्यू द नेचर ऑफ द ऑफेंस आल्सो. प्रोबेशन कहाँ करते हो आप? टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर ऑफ द ऑफेंस, द एंटीसीडेंट्स ऑफ द पर्सन, उसका इफेक्ट सोसाइटी पे क्या है, वो सारी चीजें देख के आप करते हो प्रोबेशन होनी है या नहीं. सो ओके देन. और इसको ये अगर कोई क्वेश्चन और कोई डालना चाहेगा, if we receive sufficient number of questions, then we can hold another webinar also. जी. Okay then. Yes, sir. So I thank you. Thank you, sir, on behalf of all the judicial officers, and I'm hopeful that all the queries stand answered after such an elaborate discussion on the topic. Thank you, sir. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you.